Hello everyone. You have been seeing me from last few days. I'm roaming all over Maharashtra and having fun with my friends. But back to some serious topic. I have planned some beautiful series. The people around me, my friends, who have experience in different fields, I will catch one by one and make them share their experience and what you can gain from that. It's up to you. And so now I have my friend. I will be not that formal because he's my friend and buddy. We are like that. So he's Lieutenant Rahul. Today I will have a talk with him how to prepare for armed forces. We have given SSB together. What is SSB and how his friend circle is, and how from an engineer background he came to armed forces background and his family background and all etc. We will have fun. So welcome back. Here I welcome my friend Lieutenant Rahul Gupta. Hello Rahul. Thank you, bhai. So how is life, bro? Yeah, it was good. I'm on my leave and I enjoyed a lot. I went to Takalli, Malvan City, then Ratangad with old NCC friends. Really joyful moments we enjoyed together. Baki all good, bhai. Okay. So Rahul, at last you fulfill your dream. You're living your dream. So how is that feeling? Yeah, this feeling nobody can share. This is the internal feeling Okay. that not I conquered. My friends who were with me, they helped me to conquer this, and thanks to each and everyone, even the person who gave me a seat to sit into the local trains or the other transportation when I was not having my proper ticketing. So thanks to those also. Okay. So Rahul, we will go back to your past, some flashbacks from your school days. How did you start loving army, and from where do you thought ki yes, this is a job I want to do? I am from the vernacular medium. I started my schooling from Hindi medium, and at that time हमारे पास उतना knowledge नहीं था कि हमें कैसे join करते हैं. But my brother was in NCC. He was holding a high rank in that. So Yeah. I decided Elder to brother. elder brother, yeah. So I decided to join NCC. Then I did well, but still this world knowledge that you should come to know how to join the armed forces, we were not aware. One incident I remember when I was in 10th standard, that was a teacher's day. My teacher called me. I was the monitor at that moment. Teacher called me and she told me that एक अपने बारे में बताओ आप क्या बनना चाहते हो. So that time that 26/11 attack was happened. Okay. And then I said I'll become a black cat commando. Okay. Even though मुझे पता भी नहीं था बनने हाँ, कैसा है. हाँ. ठीक है, तो वो एक छोटी सी चीज. वो पीरियड वैसे ही था कि एवरीवन थॉट कि हमें आर्मी बनना है, वो ब्लैक कैट बनना है, बिकॉज वो टाइम ऐसा था कि जब एवरीवन वाज इन कियोस एंड दे केम लाइक अ गॉड एंड सर्वाइव एवरीवन ऑल मुंबई. वो टाइम भी वैसा था. आई कैन हाँ अंडरस्टैंड. भाई बराबर. बट सीन ऐसा था कि वो टाइम पे रियल नॉलेज होना जरूरी है. जूनियर डिवीजन एनसीसी में उतनी एक्सपोजर आज भी नहीं है. मैं रिसेंटली अपने एनसीसी जूनियर डिवीजन विंग में विजिट किया था मैंने. आई फाउंड दैट द स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग मच नॉलेज. ओके. Not because of COVID, because of the general awareness they should have in our education system. Though I was not aware, I missed my NDA. I was eligible for 10+2 technical entry scheme. I missed that too. Okay. When I joined my engineering in Mumbai University, second year of engineering, I found that I should join again NCC. So I joined Senior Division NCC 1 Maharashtra Battalion, and there I gathered information ki how should I join NCC Army, why NCC, why engineering. So I can say that 2008 incident was a trigger point that you want to join Yeah, army. see, trigger point was that चाहे गुप्ता इंजीनियर बने चाहे गुप्ता डॉक्टर बने, गुप्ता को आर्मी ज्वाइन करनी है. बट पता नहीं कैसे ज्वाइन कैसे करनी है, पर वो पॉइंट था कि तुम्हें पता था कि मुझे इसमें जाना है, पर कैसे जाना है वो गाइडेंस तुम्हें नहीं पता था. लाइक इनिशियली दिमाग में ये था कि ज्वाइन तो करना है, बट ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, यही पता था मुझे. अच्छा. सो मैं आई विल लाइक टू शेयर योर इन्फॉर्मेशन. ही इज एक्स एनसीसी कैडेट. ही इज एन इंजीनियर आल्सो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ही वाज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, देन ही लेफ्ट. नाउ ही इज इन सर्विंग इन आर्मी करंटली. सो दिस इज अ प्रॉब्लम बिकॉज पीपल, बच्चे लोगों को पता है कि हमें क्या करना है, पर कैसे करना है कैसे नहीं करना है, नो गाइडेंस फ्रॉम सिबलिंग्स, पेरेंट्स, नो गाइडेंस फ्रॉम टीचर्स. ये एक प्रॉब्लम होती है. सो आई थिंक ये सब हमें इंक्लूड करना चाहिए स्कूल में स्टैंडर्ड 8-9 से ही, कि तुम ये एनडीए के लिए अभी एग्जाम प्रिपेयर कर सकते हो, जेई के लिए अभी कर सकते हो. अभी धीरे धीरे सॉफ्टवेयर जैसे कि नॉट सॉफ्टवेयर आई कैन से इंटरनेट जैसा बढ़ते गया कोविड में. वी आर नाउ वेरी मच एक्सप्लोर, बट और भी हमें इन्फॉर्मेशन गैदर करना है. ये इश्यूज मेरे को भी फेस हुई थी. करेक्ट, बट लाइक अभी कैसा है कि वी आर एक्सेस टू द इंटरनेट. चिल्ड्रन आर यूजिंग यूट्यूब, Instagram, all those social media stuff. At that time in 2011-12, we were not having so much access. I took my first mobile in 2013 after my 10th. So, but altogether, the people around you
will guide you हाँ. for sure. For that you should be in a good सो circle of सो friends. राहुल, तुम हिंदी मीडियम से थे, फिर इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं हुआ स्कूल कॉलेज, और अभी ऑफ कोर्स आर्मी ऑफिसर तो इंग्लिश मीडियम, वो एटिकेट्स मेंटेन करना, वो हिंदी से इंग्लिश में आपको आने के लिए क्या फेस हुआ, तुम्हारे फ्रेंड्स हेल्प किए कि नहीं, वो ज़रा फेस करो. Obviously, yeah, friends are close to my hearts. They really worked hard on me to improve my English. Till I took 10 plus 2 in science background. That was in English. I used to carry pocket dictionary. I used to make a sentence while I'm walking on the road. That altogether the English preparation part. But what army wants, what services selection wants, is how you're past. And your past will define your personality. Your current position will not define your personality. Obviously, the current position is because of your past. बट स्टिल इफ एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम में अगर देखोगे तो स्टडी सेम रहेगा वगैरह, बस जो वो बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस रहते, थोड़े स्मार्ट समझते, और तुम हिंदी मीडियम से फिर वो कॉन्फिडेंस, वो बिल्डअप लाने में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम और कहीं ना कहीं कुछ हेल्प किया रहेगा. और हम भी देखें, जैसे कि मैं इंग्लिश मीडियम में अपने शेयर कर रहा हूँ, हमारे फ्रेंड्स, मैं पटेल हूँ, मुझे सब कुछ आता है, बट एक्चुअली में जब हम बात करेंगे वर्नाक्युलर मीडियम और इंग्लिश मीडियम के, दे आर द वन हु अचीव वेल, बिकॉज उनको हिंदी भी अच्छे से आने लगता है, फिर इंग्लिश भी आने लगता है, फिर उनको सब कुछ बदलता है. अब मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मुझे हिंदी का अब ही नहीं आता रहेगा ढंग से. But initially, yeah, it was really hard when I was narrating my story in my PPT. I used to stuck on few words. Then I used to say in Hindi. फिर वो अंदर आ जाता है, हिंदी बोल दिया तूने. In interview also. But it took a few attempts to remove this fear कि यार हिंदी में बोल के इंग्लिश में आ सकते हैं. तो आपने It's not a test of English or this thing. No, it's the test of your personality, how you are. And obviously, if you're working on English, so you will obviously improve your confidence and do well. इज अ सेट ऑफ एग्जांपल तुम दे रहे हो कि हिंदी मीडियम से हूँ, पर इफ यू वर्क हार्ड यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली लाइक अस. But obviously, if you practice daily, English will be improved. See, in academy we used to speak in Hindi only. Only with officers we used to speak in English. तो अब जब मैं अपनी यूनिट गया हूँ, वहाँ पे मुझे इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम हो रही है. So I have to start again the curriculum, reading books daily, listening to audio books that I used to listen in English, and so forth. So again I have to be in that preparation mode. So okay, so after your junior division of NCC, you went to senior division in your second year engineering college. Yes. Okay, you 2015-16 okay, you have completed your NCC. with alpha grading. Alpha grading. So That was very difficult. Why I'm saying with alpha grading, the unit I joined, that was the infantry unit, Okay. One Maharashtra Battalion, hmm. and our engineering curriculum was totally different with the infantry unit. That was not a engineering unit. So it was very difficult for me to manage the timings of the both. I used to go daily in all the parade 1 hour late, Okay. get all the punishments. But yeah, I can say proudly You that can share little bit of experience of NCC. What is NCC? People are not aware of. People think यार NCC बस parade करते हैं. नहीं यार, NCC, I'll tell you one incident. Just a short. Yes. I remember incidents. I was in a second year of NCC, and my juniors just came after selection, and my associate NCC officer asked me who will give the lecture on the basic NCC, on the drill and the other part. I confidently raised my hand, though I was not aware what to do, because I wanted to improve my confidence, and the strength was more than 120. Okay. They all were sitting in one class. Thanks to he gave me the opportunity. I went to the class. I confidently took my book and I started speaking English. But that was not good. But मुझे पता था कि सामने वालों को भी नहीं आता है. Okay. But that moment, I was standing in front of 120 cadets and I'm speaking. That moment, I proved my confidence. Again, when I got an opportunity to command one of the troops. But I just want you to explain viewers what is NCC. People are not aware of NCC. कि क्या है NCC? क्या बस परेड करते हैं, बस 26 को जनवरी को आगे, 15 अगस्त को आगे. I'll tell you how NCC So will you can improve your just give us short example कि what are the benefits. तुम करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो क्या होगा, क्या मिलता है तुमको in crux. Okay. With respect to the services selection board and selection into the army or the armed forces, NCC will improve your confidence, will improve your extracurricular skills. Okay. Like we on the spot within half an hour we prepared our skit for the NCC championship competition and we won that. We were the NCC champions at that time. It will improve your command and control power, which obviously is important as an officer in the army or the armed forces. And again, it will improve your communication skills, the responsibility you will take. Okay. Or you are forced to wake up in the early morning every Sunday. People, all the students will sleep till Saturday, enjoy the Sunday. And we used to. Yeah, we used to. I will share my experience. As I am also an NCC cadet and also an NSS volunteer. NCC taught me discipline, how to behave, how to respect time, be punctual, be in a proper posture, uniform and all, be like a man, walk in a style. And NSS taught me
gathering with friends, how to make bonds and friendship and little bit bakchodi. But NCC was little strict. Everyone used to say, "Arey, stay away from these kids. They are very dangerous." Like, but nothing like that. So basically, they improve the mental stamina. Yes, this is the one major factor. NCC will make you so strong mentally, physically, that you can do or you can think of a different level, I can say. So yes, these two major organization had helped me personally to develop myself. Today what I am doing, roaming around the world, doing this trekking and all courses, I can say this was the starting point. From there I started, I can say this. Like whatever you did in HMI or the Himas, that was fabulous. I'm aspiring to. Thank you. Next year, see me. I'll do the I will advanced wait courses. for you and we will do Paragliding. and instructor goes together. So back to the family background. So Rahul, you were completely a civil background. No one from your home was in army or government job. So you were the first one, I think so, right? Yeah. So now how people look to you and what they are gaining कि हाँ राहुल भाई ने कर दिया, we can also do. Your siblings or I can say your niece, nephew and your friends in your village, what they have seen you, and when you have went there, what smile, what glow they shared. भाई बेसिकली मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा. हम इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो जाते हैं वहाँ पे. मेरा इमोशनल क्वेश्चन हिला ही नहीं. Okay. आई डोंट केयर कि लोग क्या सोचते हैं, उसमें लोगों का बिहेवियर क्या है. बड़े कड़वा सच ये है कि जब तक तुम सक्सेस नहीं होता ना, कोई तुम्हारे पास नहीं आता. ये तो पूछने भी नहीं आता. पूछने भी नहीं. और जब सक्सेस होते हो सब आ जाते हैं. Yes, I did my 16 attempts. I know how people used to treat me apart from my family and friends. Though I was doing well in my IT industry. Okay. I was about to go to UK also or the Ireland also for the higher study, but for the God grace I got in. So for your information, he cleared his SSB in 16 attempt. 15 attempt he was failing, and that But patience. it was not failing, okay. I can not failing. You Yeah. can say you were not able to achieve what you wanted Yes. to do. So that patience till 15th attempt is next level. I have given SSB. We were together in the same SSB in Bhopal. NCC entry. We had fun. We had enjoyed. We had just SSB not about just कि कोई एग्जाम में जाके देना है. It's all about कि जाओ मजे करो, दूसरे स्टेट से बंदे लोग आए, एक्सपीरियंस शेयर करो. Just fun. मैं इसको डराया हूँ, वो हमको डराया. It was like a camp, a small vacation with a mini India, because people from all over India used to come. So SSB will teach you a lot. You should experience SSB once in life. I will advise you. So Rahul, how did you manage? You were in IT profession, you were doing your job. So you were still into कि हाँ मुझे आर्मी ज्वाइन करना है. So वो जॉब करते करते आर्मी प्रिपरेशन, क्योंकि आजकल सब लोग प्रिपरेशन करते करते फिर रुक जाते, फिर बोलते नहीं अभी घर में पैसा सपोर्ट करना है, मनी देना है, फिर वो चालू करते, फिर वो जॉब करते 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 वो जॉब के लिए निकल जाते, उनके ड्रीम्स वो पीछे ही रुक जाते. सो हाउ डिड यू मैनेज कि तुम्हें ड्रीम को भी लेके जा रहे हो, साथ में तुम जॉब भी कर रहे हो, फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हो, ये कैसे मैनेज? क्योंकि आजकल के लाइफ में एक्चुअली मैं भी यही फेस कर रहा हूँ कि जॉब और प्रिपरेशन टुगेदर नहीं हो रहा है, बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं. टाइम मैनेजमेंट, मेंटल प्रेशर, जॉब प्रेशर. भाई जिसको करना है वो करता है. तो ठीक है. You only claim your lucky or your lucky charm, you can say. ओके. You only get your जो बोलते हैं ना किस्मत, वो तुम ही लिख सकते हो. ओके. मैं बड़ी फेक नहीं रहा हूँ ना, बड़ी बोल रहा हूँ. इससे एक्सपीरियंस कि द बेस्ट पार्ट वाज मुझे रिटन एग्जाम नहीं देने देते थे. ठीक है. सो ओनली फोकस वाज एसएसबी, एंड एसएसबी आप घर पे बैठ के प्रिपेयर नहीं कर सकते. देयर इज नो प्रॉपर क्राइटेरिया, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस. सब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव को क्रैक करने के लिए आपको अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी. I structured my days. Okay. I structured my weekdays, weekends. Obviously, I left most of the marriages of my family, in my family members, in my friends. I skipped my Goa trip. I skipped my trips to Himachal. A lot of your northeast, कितने सारे trips छोड़ दिए मैंने. But yeah, nowadays those are worth it. See, prepare करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटिन्यूएशन इज इंपॉर्टेंट है. ठीक है. बहुत लोग होते हैं जो सीरियस एग्जाम प्रिपेयर करते हैं, अरे मैंने फॉर्म भर दिया, वो एग्जाम दे देंगे, प्रिपेयर ही नहीं करते. सीरियस इज नाउअडेज वेरी टफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. बट अगर तुम्हारे पास एसएसबी है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली फोकस ऑन दी 5 days प्रोसीजर एंड आराम से क्रैक होता है. इफ यू आर वेरी सिंपल, इफ यू आर प्रिपेयरिंग, फाइंडिंग आउट वेयर यू आर लैकिंग, हो जाता है. फ्रेंड्स ने कैसा हेल्प किया आपको, और आपने वो पेशेंस लेवल कैसे मेंटेन किया, मुझे वो जानना है. क्योंकि आजकल लाइफ में पेरेंट्स ठीक है, फैमिली ठीक है, बट बैक द एंड फ्रेंड्स उतना ही इम्पोर्टेंट है.
लाइफ में सक्सेस करना, क्योंकि मुझे याद है जब तुम रेकमेंड हुए थे, तुम, मैं ज़्यादा फॉर्मल हो रहा हूँ, मेरा दोस्त है मैं तुम नहीं बोलूँगा, बट यू हैव टू बी फॉर्मल, ओके। सो मुझे सर ने फ़ोन मैसेज किया था, मुझे विश किया था कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। सर मेरा सक्सेस कि वो हुआ, बट यू आर इक्वली पार्ट। सो दैट टाइम आई फील प्राउड कि रियली कि मेरा इतना इंपॉर्टेंस था। आई एम लिटिल गेटिंग इमोशनल, पर आई फेल्ट प्राउड दैट टाइम। सो आई वांट टू नो राहुल कि फ्रेंड्स का इंपॉर्टेंस क्या है और वो पेशेंस लेवल। एंड यू कैन सी हम लोग बहुत कॉपी करते हैं दूसरे में बहुत सेम वॉच पहनते, सेम कपड़े। सो यार सिंपल फंडा है यार, यू एसएसबी अकेले प्रिपेयर नहीं होती, यू नो, ये दिस इट इज नॉट अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक आईएएस एंड आईपीएस की तुमको मेंस क्रैक करना है, यू नो, इंटरव्यू क्रैक करना है। एसएसबी इज पर्सनालिटी बेस्ड, तुम्हारे आसपास के लोग ही तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। जब तक तू मेरे को बताएगा नहीं कि गुप्ता तो अच्छा इंग्लिश नहीं बोल रहा है दैट्स ट्रू कि तू यहाँ पे बकचोदी कर रहा है, यहाँ पे मत कर जब तक, क्योंकि हम मुझे याद है जब मेरा शेड्यूल में प्रिपेयर करता था कि 9 से 10:30 टू भी था उसका पार्ट एक, कि हम डिस्कस करते थे, हमने नरेशन डिस्कस कर ली, हमने जियो पॉलिटिक्स पर डिस्कशन कर ली, एक दूसरे को गाली गलौज भी दे दिया। बाद में रियलाइज हुआ वो पॉइंट पे उसने मुझे ट्रिगर किया था, मुझे नहीं ट्रिगर होना था, है ना। मुझे मेरा पॉइंट रखना है, मुझे दूसरे का पॉइंट से मतलब नहीं है, मुझे मेरा पॉइंट रख के अपने आगे के डिस्कशन को आगे ठीक बढ़ाना है। ये तो आपने बता दी जो फ्रेंड्स आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, और जो नहीं कर रहे थे वो उनका हेल्प क्या था तुम्हारे लाइफ में? जो नहीं कर रहे थे मेरे साथ एडवेंचर में थे, लाइक यू, दिवेश, दे वर विथ मी इन माई साइकिलिंग, इन माई ट्रैकिंग, और दी अभी कभी मैं लो फील होता था आफ्टर ऑब्वियसली गेटिंग स्क्रीन आउट ऑफ 8 times कंटिन्यूस 3 बार तो स्क्रीन आउट थे। सो दे वो ऐसा बोलते थे कि ठीक है करते रहे, दिस इज अ ड्रॉबैक कि मेरी इंग्लिश ऑब्वियसली बहुत वीक थी, अभी भी वीक है, अकेडमी में मेरी इंग्लिश और ख़राब थी, बट फौज में इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है अनटिल यू आर स्टैंडिंग इन अ बिग फोरम, बट स्टिल जो जितनी भी इंग्लिश आती है उसमें आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। तो वही दोस्तों ने इंग्लिश भी इम्प्रूव करवाई, उन्होंने बातें करना चालू किया इंग्लिश में, और बस चलता गया भाई बेसिकली। ऑब्वियसली कॉर्पोरेट फ्रेंड्स के अप एंड डाउन, फ्रेंड्स के अप एंड डाउन यार, बहुत सारे फ्रेंड्स छूट गए साथ से, बहुत अभी भी साथ में है। वही बोला ना, व्हेन यू गेट सक्सेस तभी लोग तुम्हारे पास आते हैं। इन माई कॉर्पोरेट आई फाउंड माई मेंटर, भले उसको एसएसबी के बारे में नहीं पता था। आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू माई फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इन माई 4th अटेम्प्ट, मैं उसके बाद फुल फॉर्मल्स में पहन के आता, कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद अपने ऑफिस के डेस्क पे बैठा, मेरा सीनियर तब आके बोलता है अरे आर्मी ज्वाइन करना है क्या, और दैट इंस्टेंट हाँ उसको पता चल गया, दैट वाज द फर्स्ट पर्सन को पता चला कि आई एम प्रिपेयरिंग एंड दैट्स व्हाई आई एम लिविंग। वुड यू लाइक टू शेयर योर कॉर्पोरेट कंपनी का नाम? I was working with Mastec Private Limited in Kansoli for more than 3.7 years, and a great हाँ वहाँ पे भी I started participating in marathons, long distance runnings. Also I was taking responsibilities of So a team. you were, I can say, lucky कि तुम्हारे corporate friends और bosses भी उतने अच्छे Yes, मिले। yes. मैं boss starting में तो उतने नहीं था, but the last project where I was working, that manager was good. So उसको मैंने overall you can say कि without friends SSB is little more difficult. Friends, I can say you should need a support. You should, अरे कोई तो चाहिए ना कि And बताए what तू about कौन my है। friends? यार गर्लफ्रेंड पे नहीं बात कर रहे, टॉपिक कहीं और चला जाएगा, ठीक है। दर्द या ऑब्वियसली यार मैंने ऐसे भी फ्रेंड्स देखा इसके पास गर्लफ्रेंड्स है, सीरियस रिलेशनशिप है, उसने भी क्रैक किया, एक बार नहीं 4-5 बार क्रैक किया, बट या फ्रेंड्स रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली अगर गर्लफ्रेंड है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो भी और अच्छी बात है, है ना। तुम्हारी थी कि नहीं? अरे बोला टॉपिक कहीं और चला जाएगा, नहीं डिस्कस दर्द करते इसे। दुख की नस पे दर्द। तो फिर ठीक है, फ्रेंड्स का समझिए कि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स के रोल्स भी इंपॉर्टेंट है। वो तुम्हें ग्रूम करते बोलते हैं कि तुम चूतिया हो, ऐसे अच्छे से करो तो तुम थोड़े सुधरोगे, नहीं तो और चूतिया बनते जाओगे। वो पेशेंस लेवल, 16 अटेम्प्ट, अप्स एंड डाउन, वर्क प्रेशर, ये वो फैमिली प्रेशर, घर वाले भी बोलते रहेंगे भाई 16 अटेम्प्ट हो गया, शादी कर ले अभी। भाई मेरे से कम ग्रेजुएट टाइम में मेरे से ज़्यादा कमाता था ना, मेरे से जितने लोग 3 साल के तो पढ़े। पेशेंस लेवल और सबका सुनना, फिर वो फेक बाजू में रख के फिर प्रिपरेशन, ये चीज़ मेरे से अभी तक नहीं हुई है। ये चीज़ मैं सीखना चाहता हूँ तुमसे, और लोगों को भी प्लीज बताओ ये कैसे करें। देयर आर लॉट ऑफ बुक्स आई स्टार्टेड रीडिंग। बुक्स के बारे में बताओ। एक बुक तो मैं तो मंत्र रख किया तुमने, क्या योगा किया, कौन सा जड़ी बूटी ले सिलाई जीत लिया, वो भी बताओ। यार नहीं, मतलब बेसिकली मैं ऐसी रैंडम स्टॉल्स पे गया तो मुझे एक ऐसी बुक मिल गई थी, एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर। वो पता चला कि जो तुम बुक रीडिंग कब से चालू की? book reading I started when I started randomly I started reading one book called Morning Miracle 8 AM। कौन से इनिशियली स्कूल में चालू किया? स्कूल में नहीं यार, हिंदी मीडियम मतलब अच्छा क्या नॉवेल पढ़ेगा यार इंग्लिश मीडियम की ना। जब इंजीनियरिंग में था तो बंदों ने वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बुक थमा दी, पता नहीं क्या क्या थी वो, हाँ नॉवेल्स वगैरह। तो वो दैट इज ऑब्वियसली नहीं अच्छी चीज़ नहीं है पढ़नी, बस इंग्लिश रीडिंग के लिए फॉर क्रिएटिंग इंटरेस्ट यू कैन रीड। ठीक है, बुक आई केम विद वन ऑफ द बुक कॉल्ड सीक्रेट बाय रॉन्डी बैरन, द वन ऑफ द बेस्ट बुक आई कैन रिकमेंड टू एवरीवन। मैंने जो गिफ्ट भी की थी वो
वो है। वो उस बुक ने सिखाया कि यार जो तुम सोचते हो ना वही होगा. इफ आई थिंक राइट नाउ कि मुझे बुखार होने वाला है तो मुझे बुखार हो जाएगा. ये तो एक्सपीरियंस किया. फिर मैंने सेम काइंड ऑफ बुक उठाई, मॉर्निंग मिरेकल 8 AM. उसमें मैंने एक प्रोवर्ब, एक एक्रोनिम देखा, सेवर्स, SAVERS. सो S फॉर साइलेंस, A फॉर अफर्मेशन, तो B फॉर विजुअलाइजेशन, E फॉर एक्सरसाइज एंड R फॉर रीडिंग एंड देन स्क्राइबिंग. सो यू कैन से कि तुम बोलना चाहते हो कि ये बुक्स ने पेशेंस लेवल तुम्हें पेशेंस लेवल बढ़ाया क्योंकि वो एक्टिविटी मैंने करना स्टार्ट किया ना. ओके. I started doing visualization, which I learned from the secret book. I started doing these 5 activities or 6 activities before 8 AM. जो फॉलो नहीं होता था ऑब्वियसली प्रॉपरली, बट करता था मैं सुबह उठ के साइलेंस, सुबह उठते ही अच्छी नींद मिली है, भले ही तुम लेट उठे हो, तो पॉजिटिवनेस, भले ही तुम लेट उठे हो बट अच्छी नींद मिली है, यू शुड थैंक गॉड. क्योंकि नींद नहीं मिलती भाई बहुत लोग को, है ना. फिर एक्सरसाइज कर लिया, 8 बजे से पहले तुमने इतनी चीज़ें कर ली तो तुम दिन तो अच्छा. ऑब्वियसली मैंने एक टास्क कर लिया, और ऑब्वियसली मेकिंग योर बेड. तुमने अपना बिस्तर बना लिया सुबह, तो एक टास्क तो वैसे पूरा हो जाता है. तो तुम बोलना चाह रहा है कि वो बुक्स फिर मैं ये जो बुक्स में एक्टिविटीज थे वो फॉलो करने में उसमें पेशेंस लेवल धीरे धीरे पेशेंस लेवल बढ़ता है, मेंटल स्टैमिना बढ़ता है. यू स्टार्टेड बिलीविंग ऑन योरसेल्फ. Basically, I started writing diaries. So you recommend people to read books? Of course, you should read book. I'll recommend you should do 5 activities daily, 5 to 6 activities. Okay. When you wake up, do your bed. अपना बेड अच्छे से मेंटेन कर लो. Okay. ना चादर वादर अच्छे से बिछा दो, तकिया बिछा दो. देख का अच्छा लगा, मैंने कर लिया पहला काम. ठीक है. After getting fresh enough, you do silence. That is a word, silence. इसमें तुम आराम से कोई एक, मैं तो वाहिगुरु का सॉन्ग सुनता था, वाहिगुरु वाला सॉन्ग सुनता था, एंड कृष्णा का सॉन्ग सुनता था. आप बैठ जाओ मेडिटेशन में, सोचो, एंड दैट व्हाइल डूइंग दैट स्टार्ट डूइंग विजुअलाइजेशन. यार मेरा दिन कैसा जाएगा, ना मेरा एम क्या है. मैं फन फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने गॉट रिकमेंड, जो ऑफिसर ने रिजल्ट सुनाया, जिस जगह पे मैं खड़ा था, हाँ, जो कपड़ा मैंने पहना था, जो टाई मैंने पहना था, वो सेम था. ऑफिसर तक सेम था, बिकॉज मैं वो कपड़ा, हाँ, शिद्दत से चाहो तो मिल जाती है. सीरियसली अभी मैंने लास्ट 1 ईयर से मैंने बंद कर दी. मैं वो जो डायलॉग है फॉलो करता था. कैसे बताऊं कैसे करता था. मैं सोचता था कि मैं चाहूंगा हार्ड वर्क नहीं करूंगा, मेरे पास आ जाएगा. मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास बम्बू आया. वो हो गया भाई धीरे धीरे ना वो चीज़ें. बट अभी लास्ट 1 ईयर से एकेडमी इतना बिजी शेड्यूल है, आर्मी इतनी बिजी शेड्यूल नहीं हो पाया. बट आई एम प्लानिंग टू डू रेजोल्यूशन इन 2023 कि अगेन मैं स्टार्ट करूँ इस चीज़ को. आई स्टार्टेड लिसनिंग ऑन ऑडियो बुक बाय स्कीप रॉस, वन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट. वो एक दिन का एक वीडियो ऐसा था 2-3 मिनट का, जो लाइफ के बारे में, एक वर्ड विजुअलाइजेशन ले लिया, हार्ड वर्क ले लिया, कंसिस्टेंसी ले लिया विद एग्जांपल्स, वो समझाते थे इस चीज़ को. तो ये बात सच है कि व्हेन यू आर वर्किंग हार्ड एंड यू रियली वांट इट, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है. वही ओम शांति ओम वाला डायलॉग. बट देयर शुड नॉट बी नेगेटिविटी इन बिटवीन. नेगेटिविटी तो यार आ ही जाता है ना. नहीं, दैट यू हैव टू कंट्रोल. वही तो मेरे से नहीं होता बहन. पढ़ बुक पढ़ भाई, हो जाएगा. ठीक है. अरे यू ऑब्वियसली आर सराउंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट. मेरे इतने फ्रेंड्स थे, दे स्टार्टेड विद मी प्रिपरेशन. उन्होंने मेरे से अच्छा भी कर रहे थे, बट फैमिली प्रेशर आया, वर्क प्रेशर आया. आई एम वेरी ग्लैड कि मेरी फैमिली सपोर्टिव थी. वो हैंडल नहीं कर पाए और रुक गए. तुमने हैंडल किया, इसलिए तुम आज इधर हो. मैं देखा यार, मैंने तो साफ साफ इंटरव्यू वाले को बोल दिया था, जो आया था उसको मैंने बोल दिया भाई. वो उसने पूछा आप क्या करोगे, मैंने भाई सिंपल, इफ आई गेट सिलेक्टेड इट्स गुड, इफ नॉट आई ट्राई फॉर 2 more attempts. आई वाज डाउन द लाइन, मेरे पास एक एनसीसी अटेम्प्ट थी, एक टीजीसी था. ये तो ट्राई करूंगा, अदरवाइज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय आईएलटीएस. आई विल गो आयरलैंड एंड अर्न मनी, बिकॉज मैं अब पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ ना. 3.7 years के एक्सपीरियंस पे मेरी सैलरी अभी भी कम है, क्योंकि मैंने जॉब स्विच नहीं की. आई वाज इन अ गुड कंपनी. सो व्हाट आर्मी सीज इन यू, मतलब आर्मी क्या देखता है और कैसे सिलेक्ट करता है बंदे को. नॉट हम नहीं बोल सकते हो, बट स्टिल तेरा एक्सपीरियंस कुछ कि आर्मी क्या देख के लेता है और किसको चाहता क्या है आर्मी. बेसिकली आर्मी ये चाहता है कि तुम्हारा पास अच्छा हो, तुमने हार्ड वर्क किया हो. फॉर एग्जांपल जितना मेरे को पता भाई, आर्मी का जो प्रोसेस है वो अनप्रेडिक्टेबल है ना, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. तो सिंपल लाइक फॉर एग्जांपल, अगर तूने 10th में 90% लाया और तूने स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं किया, ऑब्वियसली तूने 90% लाया इसलिए स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं किया. और फॉर इन्फॉर्मेशन एसएसबी में सिलेक्शन रेशियो इज लेस देन 1, मतलब वो आईआईटी फिर डॉक्टर वगैरह से भी कम है. आई रिमेंबर वी वर इन हमारे सेम एसएसबी में वी वर अराउंड 300 समथिंग, अराउंड 300-350, और वी जस्ट सिलेक्टेड 18. उसमें भी एक जन डॉक्यूमेंट फॉर फर्स्ट राउंड. फिर हमने पूरा 5 डे का प्रोसेस किया. एट द एंड वी वर टोटली वॉश आउट. कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ. बोलेंगे खाओ पियो घर पे जाओ, कोई नहीं. और स्टिल हम यू नो इन दिस प्रोसेस जब हम सक्सेस भी नहीं हो रहे, हम फेल बार बार फेस कर रहे. Literally we 17 went to beer bar. We had a good drink, enjoyed and went back to home. I have that photos and all. If possible I will share with you all. Okay. फिर मतलब आर्मी यही चाहता है कि तुम
नहीं यार, पास्ट बेसिकली तुम्हारा पास्ट अगर अच्छा नहीं है हम्म, तो तुम अभी जो प्रिपेयर कर रहे हो वो कल उसमें- तुम्हारा पास्ट होने वाला है। हम्म, तो आज जो कर रहे हो वो अच्छे से करो। एंड दिस इज नॉट अबाउट द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यार, इज अबाउट योर लाइफ आल्सो, है ना। जब मैं मेडिटेट करता हूँ तो मैं एसएसबी के लिए नहीं मेडिटेट करता हूँ, वो- या जो करता था, हाँ, ऑब्वियसली मैं लास्ट 1 ईयर हाँ। से नहीं कर रहा हूँ ठीक से, है ना, बट मैं अपनी लाइफ के लिए कर रहा हाँ, हूँ, फॉर माई मेंटल स्टैमिना। एसएसबी भी तो यही चाहता है, तुम एसएसबी के लिए मत आओ, तुम हाँ। अपने आप को सुधारो, एसएसबी तुम्हें ले लेगा, खुद ही ले लेगा। तुम अपने आप को सुधारो, तुम जो कर रहे हो गलती वगैरह वो सुधारो, फिर हम ले लेंगे तुम्हें, वही सही है। फिर आपने सीडीएस वगैरह आई अपियर फॉर 4 टाइम्स सीडीएस बट डिडंट क्लियर। मैंने इतना फोकस ही नहीं किया, मुझे पता था सीडीएस ओटीए क्लियर करने के बाद मेरे पास एनसीसी है, सीडीएस पीसी क्लियर करने के बाद मेरे पास टीजीसी है, और सीडीएस क्यों प्रिपेयर करो जब मेरे पास जॉब है। जॉब है, और ऊपर से डायरेक्ट तुम्हें फिर टाइम ही नहीं है मेरे पास यार, बिल्कुल टाइम नहीं था। जॉब सिनेरियो हाँ। ऐसा था कि मैं एसएसबी प्रिपेयर करूँ कि सीडीएस प्रिपेयर करूँ, हम्म। बट यार प्रिपेयर करना चाहिए था। अभी थोड़ा मेरा जनरल अवेयरनेस इतना स्ट्रांग नहीं, सीरियस होता तो और अच्छा हो जाता। हो जाता, पर ठीक है ना, हम ऐसा खाए कि ऐसा है। बात तो ये क्यों सीरियस देख के आर्मी में जाते तो वही ओटीए था, वही तो था मेंटल अभी भी तो फिर वो इंटरव्यू में तो वही पूछता था ना कि तुम सीरियस हाँ। क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे हो। हाँ। अरे मेरे पास है तो मैं क्यों क्लियर क्यों करूँ, clear करूँ, वो क्यों भी इतने fact भीड़ के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो जाऊँ। आर्मी में अब मैं अभी प्रोसेस में आऊँगा कि क्या क्या प्रोसेस है आर्मी ज्वाइन करने के लिए। एनसीसी करोगे तो कौन से एंट्रीज खुलते हैं, इंजीनियर करोगे तो कौन से एंट्रीज खुलते हैं। राहुल तुम ही बता दो कि क्या एंट्रीज है, और किस एंट्रीज में डायरेक्ट एंट्री है कि तुम डायरेक्ट एसएसबी दोगे और तुम्हें एग्जाम देने की जरूरत है, यार किस किस चीज ये तो ऑब्वियसली सबको पता ही होगा। फिर बेसिकली difference सिंपल सा है यार, अगर एनडीए दिया तो नॉन टेक्निकल जॉब मिलेगा, या नॉन टेक्निकल एंट्री है ना। सीडीएस दिया तो नॉन टेक्निकल एंट्री है। 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम दिया आफ्टर 10 आफ्टर 12th, so which will army will make you engineer and then you will join in engineering services in the army, and again after graduation और सीडीएस दिया, सीडीएस में ओटीए दिया तो ओटीए गया मैं जॉब, शॉर्ट सर्विस कमीशन, परमानेंट कमीशन सीडीएस ऑब्वियसली आई में। पर टेक्निकल आफ्टर ग्रेजुएशन इफ़ यू स्कोर वेल इन योर इंजीनियरिंग, आई प्लान सो कि मेरा अच्छा इस हुआ है, मेरा आज तक एक भी मैं ये नो कट ऑफ आउट नहीं हुआ, अच्छा क्योंकि मैंने वो प्लान करके रखा कि मेरे को 75 अब आना ही है इंजीनियरिंग में cross हुआ है। हाँ, इसलिए मेरी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है अभी, कम है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि दोनों बैलेंस करना बहुत वेरी डिफिकल्ट डिफिकल्ट है। है। हाँ, तो मैंने बास्केटबॉल सीखना स्टार्ट किया था इनिशियली, फिर वही आपने फिर एनसीसी दे दोगे तो एनसीसी ओटीए चले जाओगे, एंड इंजीनियरिंग दोगे तो आपके पास शॉर्ट सर्विस कमीशन की एसएससी टेक है और टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की टीजीसी है, ओके परमानेंट है शॉर्ट सर्विस की। ठीक है। तो के साथ चलिए फिर ये हम और ये एसएसबी था एसएसबी भोपाल और हम कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। बैच हो रहा So Rahul, what was your experience in outdoor and in your last attempt, in the attempt you got selected? जब चेस्ट नंबर बुलाया, फिर तुम्हारा मेडिकल्स, मुझे भाई रैपिड फायर मत कुछ, आगे ने वैसे ही परेशान कर रखा था। वही सेम फीलिंग। अरे नहीं यार, सिंपल आउटडोर एक्टिविटीज़ तो तेरे प्लान में होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जो तेरी ऑब्वियसली आउटडोर एक्टिविटीज़ विल इम्प्रूव आवर पर्सनैलिटी। ग्रुप गेम खेलेगा या बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग ही कर रहा है तो उसमें तुझे पता चलेगा कि यार तेरा मेंटल स्टैमिना किस हद तक है, और जो तो प्रिपेयर करेगा उस चीज़ के लिए तो ऑब्वियसली यू आर प्रिपेयरिंग समथिंग जो तुझे तेरी स्टोरीज लिखने में भी हेल्पफुल होगी। बट इन ट्रेडिशन इंडियन फैमिली पेरेंट्स आउटडोर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स के लिए है पढ़ाई कर, पढ़ाई से सक्सेस होगा, आउटडोर एक्टिविटी इतना मायने नहीं रखता। स्कूल में भी अपना वही है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ को एकदम लास्ट में रखते हैं। यार ये अपने टाइम पे था ना, अब स्कूल की करिकुलम और पेरेंट्स की थिंकिंग भी चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ सोशल मीडिया एक्सपोजर्स, बट अब चेंज हो रही है एंड ऑब्वियसली अब करिकुलम में भी ये सब ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मार्क्स तो हो जाएंगे यार, ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन्स बहुत हो रहे हैं, बट जो पर्सनैलिटी बिल्ड होगी ना वो पढ़ाई से नहीं होगी सिर्फ। बट सो यू तुम बोल रहे कि आउटडोर एक्टिविटी उतना ही इम्पोर्टेंस। एटलीस्ट यू शुड हैव वन ग्रुप गेम ओके, एंड वन इंडिविजुअल गेम। सो आउटडोर एक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट, ये सब। टाइम मैनेजमेंट व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग माय डायरी डेली, और मेरी हैबिट ही हो गई थी कि ना राइटिंग से सब चीज़ होनी चाहिए। इवन तब मैं जब ट्रैवलिंग करता हूँ मैंने पीएनआर स्टेटस भी अपने एक पेपर पे लिख लेता हूँ। ओके, फ्लाइट क्या है, ट्रेन का हो, मुझे मोबाइल पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है कि कब स्विच ऑफ हो जाए, कब क्या हो जाए। एटलीस्ट यू विल हैव अ पीएनआर नो नंबर्स, तो तू किससे भी लेके अपना पीएनआर स्टेटस चेक कर सकता है, सीट नंबर एंड ऑल। सो पेपर वर्क स्टिल वर्क्स, बट अगेन वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की, इसको मैंने इतना टाइम दे दिया, इसको इतना, कभी कभी होता था कि वो फॉलो नहीं होता था, कुछ ऑफिस वर्क आ गया, कुछ मेरे इश्यूज आ गए, बट फिर वो टाइम पे थोड़ा बहुत तो हताशनेस होती थी कि यार क्यों हो जा रहा है, बट अगर कंटिन्यूशन में रहेगा तो वो भी कंप्लीट हो जाता है। योर एक्सपीरियंस ऑफ योर लास्ट एंट्री, चेस्ट नंबर, मेडिकल, फिर यू गॉट अ मेडिकल पॉइंट, फिर वो टाइम पे वापस लाइफ अपना हाँ, when I was called, जो ऐसे मैंने बताया सारा सिनेरियो सेम था, ऑफिसर जिसने बोला वो भी सेम था जो मैंने सोच रखा था, वो डेस्टिनी था कि क्या था आई डोंट नो। उसके बाद उसने एक ऑफिसर ने बोला कि इसका सांप का बैग लेके आओ, तो पता नहीं वो वर्ड मेरे को इतना हिट कर गया एंड ऑब्वियसली वो इतना इमोशनल मोमेंट था, आई क्राइड अ लॉट
अब मैं कैसे कैसे तो बैग लेके अपने बैरक में गया जहाँ पे मुझे रुकना था हमको अगले 8 दिन। फिर मैंने कांटेक्ट करना स्टार्ट किया फैमिली से। फैमिली को कांटेक्ट ही नहीं हो रहा, दे वर ट्रैवलिंग टू द वैष्णो देवी होल फैमिली। एंड आई कांटेक्ट माई वन ऑफ फ्रेंड कि अब बता देना। तो शी वॉज माई स्कॉलर कलीग, उसने फिर बताया फैमिली को। एंड देन जर्नी स्टार्टेड। आई गॉट TNS डिवीटेड नेजल स्पेक्ट्रम एज अ टेम्परेरी रिजेक्शन। मैं यहाँ आया। फिर तब तो ऐसा लगा रहेगा थोड़ा ओपन डाउन कि वापस तो बताया यार, ऑब्वियसली मेरा बैकग्राउंड आर्मी का नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि ट्रीटमेंट कैसे करवानी है, क्या करनी है। तो मैं फिर बहुत सारा कॉन्टैक्ट लिया यहाँ वहाँ से। NCC ऑब्वियसली हेल्प मी अ लॉट। फिर मैंने सिविल डॉक्टर से अपना ऑपरेशन करवाया, एंडोस्कोपी का DNS ऑपरेशन करवाया, नेजल स्पेक्ट्रम दैट कॉल्ड एज इन मेडिकल टर्म। मैं INSS अश्विनी में अपील किया एंड देन आई गॉट क्लियर। सो फिर वापस OT जाते समय अगेन वो टाइम पे भी मुझे इंजरी थी, बट वही है कि डर सा तो लगा ही रहता है कि यार इंजर्ड होके जा रहे हो तो ट्रेनिंग करने। और OT की ट्रेनिंग अच्छी है, स्ट्रेचिंग अच्छे से हुई मेरी इनिशियल फेज में। कोविड की वजह से सिर्फ योगा होता था स्टार्टिंग में, तो मैंने रिकवर कर ली उससे। सो जेंटलमैन, तो आप यू कैन थिंक कि अ बॉय, अ जेंटलमैन कैडेट और अ मैन कैन ऑल्सो क्राई, ओके? जस्ट बॉयज डोंट क्राई इन ओपन सराउंडिंग, वी क्राई इन अ क्लोज सराउंडिंग, जिसको कुछ पता ना रहो। हम एक्टिंग नहीं करती है, रोना धोना, मेरे को दर्द है। बकचोदिया मत कर, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? एवरीवन हैज अ इमोशन भाई, बस बट इट्स टू नॉट बॉयज डोंट शो द इमोशन। बट ट्रेनिंग में वो सारे निकाल दिए। अपने POP में एक बार मेरे आँख से पानी नहीं निकला, जबकि अगर मेरा दोस्त मुझे कॉलेज से छोड़ के भी जा रहा है दूसरे स्टेट में कि मुझे पता नहीं मिला, तो वो फीलिंग आती है यार, वो मिलेगा ही नहीं, है ना? और ठीक है, दैट इमोशनल क्वोशंट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट इन सिलेक्शन। आई स्टिल क्राई। हाँ, देखो छोड़े जाने के बाद मेरे को कॉल नहीं करता था ये मेरा दोस्त मेरे को कॉल नहीं कर रहा। बट OTA वाज अ गुड एक्सपीरियंस, वो कभी कोई नहीं भूल सकता। द लास्ट जब हमने 35 किलोमीटर का जोश रन किया, फिर 50 किलोमीटर में चेंज हो गया ऑन रूट। सो असली औकात, असली उतना पर्सनालिटी वहीं दिख जाती है लोगों की। बट मेरी ग्रुप अच्छी थी, वी हेल्प ईच अदर, हमने दूसरों का लोड शेयर किया, किसी को मोटिवेट किया। बट एट द एंड वी वॉन दैट, यू नो, वी केम फर्स्ट द जोश रन। बाकी इंजरीज भी होती है। इन माई ट्रेनिंग आई फेल्ड फ्रॉम 10 फीट वॉल, मेरे को क्लोज हेड इंजरी और लेफ्ट शोल्डर कॉन्ट्यूशन हो गया था यार 8 दिन में मेडिकल से। हाँ, बट वो फियर था ना कि ज़्यादा सीरियस हो जाता था, मैं रेलीगेट भी हो सकता था, है ना? तो एकेडमी में भी ना ज़्यादा ऐसा जोश में चीज़ें करने की जरूरत नहीं, इंजरी से बच के रहो। एक बार एकेडमी निकल जाएगा तो जितना जोश लेना लेते रहो। डू यू मिस दैट डेज? ऑफ कोर्स यार, अभी मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे और पनिशमेंट लेनी चाहिए। मेरे पास सिर्फ एक ही पनिशमेंट है पूरे एकेडमिक करियर में, मुझे और पनिशमेंट लेनी चाहिए। और मैं कॉन्टैक्ट्स बनाता, शेयरिंग बॉन्ड शेयरिंग करता, क्योंकि आप कुछ नहीं, ऑफिसर सब बनते हैं, सिर्फ तुमको टेस्ट पास करने होते हैं। मिनिमम क्राइटेरिया से भी टेस्ट पास कर लो, तुम ऑफिसर बनना ही है तुमको। फिर मैं अभी सैचुरेट हो रहा हूँ, मैं अभी पढ़ नहीं पा रहा हूँ। फोन दोस्तों को कॉल कर, निकल जा साइकिलिंग पे, निकल जा रनिंग पे, स्वेट आउट। वो जगह बैठ के वही थॉट्स बार बार सोचने से बेटर कि निकलो। हाँ, सबसे अगर माइंड डाइवर्ट हो रहा है, 10 पुशअप मार लिया, पसीना निकल गया, नहा लिया, पढ़ने बैठ गया, है ना? नहीं पढ़ने बैठे तो कोई अच्छा सा मूवी निकाल लिया जो मोटिवेटिंग काइंड ऑफ मूवी है, मैंने उसको देख लिया, है ना? कोई बुक रीडिंग करना चालू कर दी ट्रैवलिंग में। मुझे भी याद है, मेरा जो कमांडेंट था वो बोलता है, नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल गर्ल इन दी फ्लाइट, कितनी भी अच्छी एयर होस्टेस हो, मैं बुक ही पढ़ता था। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन है। ऐसे मजाक में बोला था उसने, ऐसा फन पार्ट। बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। I'll also start it. I'll start again. It's just a part. When he just started his career, many more will come, many more things he will get experience, and I will keep on making videos related to him. And of course, the videos, hello, where is me, will also keep on going with friends. And yes, happy hunting down. Thank you. And Thank you so much. also एक दो मेरे लिए भी उड़ा लेना। और घूमते रहेंगे, यही एक्सप्लोर ट्रैकिंग वगैरह चलता रहेगा हमारा। लेट्स सी आगे क्या होता है। इट वाज अ नाइस टॉक विथ यू एंड आई एंजॉयड। नाउ लेट्स गो आउट एंड फक इट। बाय बाय। Thanks.